बढ़ चढ़ के बोलता है उर्दू اور جملہ اراکین صحافتی میدان میں ایک تاریخ رقم کی جب تمام وسائل محدود ہوئے اور ہزاروں لوگوں کے گھر تعاق ہونے. سب سے پہلا سوال ان سے پوچھا کہ ندیم ترین صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں، اور میرا اندازہ بھی صحیح تھا اور ان کا جواب بھی بڑا معتبر تھا. انہوں نے کہا وہ میرے بھائی ہیں، اور بات آگے بڑھی. انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا ایک زمانہ ہوا کرتا تھا 93 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا طالب علم تھا، تو وہاں بات چل رہی تھی کہ ندیم ترین صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو عطیہ میں ایک ہاسٹل دے دیا، اور اس ہاسٹل کا نام ہے ندیم ترین ہال. تو میں نے کہا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، اور تب سے یہ ندیم ترین صاحب کا نام میرے دماغ میں گونجتا رہا، اور میں بڑا انسپائر ہوا ہوں ان کی ذات سے. اور جب انہوں نے اپنی بات شروع کی تو میں نے کہا کہ آپ ہی ویسے ہی شہدائے ہوں گے، اور وہ کسی قوم کے لیے شہدائے ہیں اور آپ کسی زبان کے لیے شہدائے ہیں. میں ان کو بڑا احترام کرتا ہوں، ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی ہمارے ملاقات ہوتے رہے، اور میں بڑا خوش ہوا جب جب بھی یہ میرے پاس آئے، اور جب جب بھی انہوں نے اردو ادب اور زبان کے حوالے سے بات چھیڑی تو مجھے بہت اچھا لگا. اور خاص بات ان کی ذات سے یہ ہے کہ یہ آدھے کشمیری آدھے مراد آبادی ہے. میں آدھے زیادہ کشمیری ہوں. انہوں نے ٹول پوسٹ کو کور ہی نہیں کیا، یہ انڈائریکٹلی آ گئے. تو اور آج کی اس مادیتی دور میں بھی اتنا خلوص ہو کسی زبان کے لیے، کسی ادب کے لیے، یہ بڑا کمال ہے، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں. کیا وہ ساری پانی پانی ہارنی فکر کہاں کوئی سوچ. یہاں تک کہ ایسا دور آیا ہے، مجھے اپنا شعر یاد آ گیا، سایہ بھی جہاں ساتھ نہیں دیتا ہے اپنا، سایہ بھی جہاں ساتھ نہیں دیتا ہے اپنا، یہ کس مقام پر ہمیں لائی ہے زندگی، کس کس طرح سے ہم کو ستائی ہے زندگی، پھر بھی سکوں کے ساتھ بتائی ہے زندگی. آج کے زمانے میں سایہ پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ میرا ہی ہے کہ نہیں، ادروائز شیڈو از ناٹ ڈیٹیچبل. لیکن ایسا ہی دور ہے، اور میں ان کو بڑا تحسین دیتا ہوں کہ یہ آگے بھی اسی جذبے، اسی لگن اور اسی خلوص کے ساتھ اپنے ادب کی، اردو ادب کی خدمت کرتے رہیں، اور جہاں بھی ہمارا تعاون چاہیے ہم حاضر رہیں گے، ہر ایک انفرادی طور پہ بھی، محکمانہ طور پہ بھی، اور اجتماعی طور پہ بھی. ایک بار پھر میں ان کو اور ان کی جو ٹیم ہے جس میں بشیر چراغ صاحب شامل حال ہیں، اور ان سے میرا کافی پہلے آمنا سامنا ہوا ہے. میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن افسر بارہمولہ میں تھا تو چراغ صاحب میرے پاس آتے تھے، اور یہ کلچر کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، مشاعرے کے حوالے سے میرے ساتھ بات بھی کرتے تھے. اور شاید ایک بار انہوں نے میرا کہیں پہ تذکرہ بھی کیا. ان کو ایک میرا کشمیری شعر بہت پسند آیا تو انہوں نے میرے پہ کچھ تبصرے میں لکھا. وہ شعر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. مزاروں ہند خجل دیشت قبرن گرند کرت شاید، مزاروں ہند خجل دیشت قبرن گرند کرت شاید، توئی شہر پرسن حالات خوابس منز. ہم کلمات پیش کریں جناب طلعت صاحب. بہت بہت شکریہ. عالمی اردو مجلس اردو دہلی کے صدر، ہمارے دوست، ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر حنیف ترین صاحب، اور ان کے ساتھی بشیر چراغ صاحب، ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی ریسپیکٹفل کشمیر ویلی کے شاعر، بڑے مشہور ادیب جناب غلام نبی خیال صاحب، میڈم مریم کاشمیری صاحبہ جو کہ ہمارے بڑے مشہور اور بہت بڑے کنٹریبیوشنز جو کشمیری لینگویج اور اردو لینگویج میں کیا ہے، جناب پروفیسر حمدی کاشمیری صاحب،
جو ہماری یونیورسٹی کے بھی ایک بہت ہی مشہور پروفیسر رہے ہیں، ڈاکٹر شمیم صاحبہ، گلزار صاحب، ہمارے دوسرے دوست احباب یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں، میں سب کو بہت ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں، اور خاص کر کے ندیم ترین صاحب کا جو ابھی ذکر آیا تھا، وہ جب میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو وہ ہمارے کنٹمپریری تھے، ایون یہ ہم سے سینئر تھے، تو ان لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ملک میں، اور خاص کر کے جب میں دوسرے ٹرم پہ کشمیر یونیورسٹی آیا تو جو سب سے پہلا فنکشن جو میں نے اٹینڈ کیا تھا انہی کا تھا، جس میں انہوں نے کچھ اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ تو ترین صاحب جو ہیں، ڈاکٹر ترین صاحب، یہ دہلی کے علاوہ کشمیر میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ اس دلچسپی کی وجہ کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور جس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے ان کو آپ منع بھی نہیں کر سکتے۔ طلعت صاحب، محفل کے صدر جناب غلام نبی خیال صاحب سے بصد احترام گزارش ہے کہ وہ اپنا صدارتی خطبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر حنیف ترین کو خراج تہنیت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جہاں دلی میں بھی اردو کی شمع کو جلائے رکھا، وہاں اس کی روشنی یہ کشمیر تک بھی لائی۔ میرے خیال میں یہ واحد شخصیت ہے اردو کے عاشق ہیں جو اپنی صوابدید کے مطابق دونوں شہروں میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں کی تقریبات کا سلسلہ انہوں نے گزشتہ سال شروع کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ آج یہ پھر اس تقریب کو دوہرا رہے ہیں، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اردو جو اس وقت ہے وہ بعد مخالف کی ہوا کی لپیٹوں میں گری ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں کشمیر میں جو بھی کام اردو کا ہو رہا ہے وہ سرکار نہیں کر رہی ہے۔ سرکار نے کاغذی طور پر اس کو آفیشل لینگویج بنایا ہے، لیکن سرکاری طور پر ایک لفظ بھی اردو میں نہیں لکھا جاتا۔ اگر آپ شام کو روز یہاں کے ڈپٹی کمشنروں کی باتیں سنیں گے، وہ 2 منٹ بات کر کے 900 منٹ سے زیادہ انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ الفاظ جن کے اردو کے متبادل موجود ہیں۔ باہر والوں سے بھی ہمیں شکوہ ہے، خاص کر اردو ادیبوں سے، جن میں ڈاکٹر حنیف ترین شامل نہیں ہے۔ آج سے کئی سال پہلے میں نے اقبال انسٹیٹیوٹ دلی میں ایک تقریب میں شمولیت کی، وہاں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کشمیر کے اردو والوں کو یا کشمیری ادیبوں کو اکساتے ہیں، میں نے لفظ اکسانا استعمال کیا، کہ آپ اردو میں لکھیے۔ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی کشمیری ادیب ہیں ان سبھی نے اردو میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے۔ یہ ان کی محبت ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی اس میں کسی کی جو چاہت نہیں ہے۔ لیکن میں نے ڈاکٹر نارنگ صاحب سے کہا، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کشمیر کے کسی اردو ادیب کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ دلوایا جائے؟ اب جواب سنیے نارنگ صاحب کا۔ کہا، ارے بھائی، آپ کے اردو کے ادیب جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ کشمیری اردو لکھتے ہیں، جس میں غلطیاں ہوتی ہم کس کو ایوارڈ دیں؟ یہ حال ہے وہاں کے اردو ادیبوں کا۔ اور یہاں جو حالت ہے، جن کشمیری شعراء ادیبوں کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا، جو ہندوستان کا سب سے بڑا ادبی انعام ہے، وہ کشمیری میں ملا۔ غلام سل نازکی نے 60 سال تک اردو میں شاعری کی، لیکن ان کو کبھی اس درخور نہیں سمجھا گیا اس بات کا کہ ان کو ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ سے نوازیں۔ بعد میں جب ان کا کشمیری مجموعہ کلام چھپ گیا تو انہیں وہ ایوارڈ دیا گیا۔ یہی حال ان کے صاحبزادے فاروق نازکی کا بھی تھا، جو عمر بھر اردو میں شاعری کرتے رہے،
लेकिन अवार्ड मिला उनको कश्मीरी मजमूए पर। मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त जनाब हामिद कश्मीरी साहब मरहूमा मकबूल भी 6 दहाइयों तक उर्दू में लिखते रहे, लेकिन किसी ने उनकी पजीराई नहीं की। और जब उनका भी मजमूआ कलाम कश्मीरी में छप गया तो उनको इस काबिल समझा गया, हाँ इसे भी इनाम दिया जाना चाहिए। जम्मू की बात करें तो हमें इस हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए कि जम्मू में अब उर्दू का नाम कहीं पर पैदा नहीं होगा। ये काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद से शुरू किया है, और हमने काम शुरू किया है लड़कियों से, क्योंकि औरत जो है अगर ऐसे मोटा मोटा कहा जाए तो मर्द से बड़ी होती है। और रजाल क़वामून अला निसा है, सिर्फ मर्द को उसकी हिफाजत करना है और सरदारी करना है, क्योंकि वो माँ है, मर्द पैदा करती है। एक तख्लीक़कार ऊपर बैठा है जिसने आदम को बनाया, दूसरे तख्लीक़कार कौन है? औरत, जो मर्द तख्लीक़ करती है। बहरहाल ये एक अलग बात आ गई। मैं आपसे अर्ज करूं, आइए हम अपनी औरतों की इज्जत को बढ़ाएं, उनके अंदर वो जज्बा पैदा करें जिससे कौम और मुल्क दोनों आगे बढ़ें। जब तक हम अपनी माँ को नहीं पूछेंगे, अपनी बहन को नहीं पूछेंगे, अपनी बेटी को नहीं पूछेंगे, तो बीवी पे रोब जमाना भी नहीं अच्छा होगा, क्योंकि बीवी आज बहुत एडवांस है पहले से। उसके अंदर सबसे ज्यादा एडवांसमेंट आया पूरी दुनिया की ये तरक्की के अंदर। बहरहाल बातें बहुत हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी महफिल मुशायरा है, 6-7 शायर हैं। अगर आपकी तबीयत पर गिरा ना गुजरे और आप में से अक्सर लोग बैठे रहें, तो आइए महफिल मुशायरा शुरू करते हैं। आज उसने किया था फोन मुझे, उसकी आवाज सुन रहा था मैं, नर्म लहजा महकती सांसों से, फूल हंस हंस के चुन रहा था मैं। वो इशारे कनाए तलमी है, वो लगावट, वो लज्जते तकरीर खींच दी थी फजा के सीने पर। शोक फुकरों ने नुकराई सी लकीर आ रहा था हवा की लहरों पर, लबे नाजुक की लर्दिशों का पयाम मैंने बेइख्तियार चूम लिया। छलका हुआ सब प्यार का जाम। आइए हज़रात शुरू करते हैं, और शुरुआत भी करते हैं कहाँ से? हम खुद शुरुआत करते हैं अपने यहाँ से। मैं दावत कलाम हमारी मेहमान खुसूसी की हैसियत से डाइस पर तशरीफ लाएं, मोहतरमा शबनम अशाई साहब। हुजूर से पूछा एक शख्स ने कि या अल्लाह के रसूल, ये बताइए खुदा के और रसूल के बाद मैं दुनिया में किसकी इज्जत करूं, किसकी बात सबसे ज्यादा मानूं? तो उन्होंने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर फरमाया अपनी माँ की। तो समझा बात खत्म हो गई। तो फिर वो उठा नहीं, उन साहबी ने फिर कहा कि या रसूलुल्लाह उसके बाद? तो आपने फरमाया अपनी माँ की। वो बड़ा परेशान हुए साहबी, कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर कहा सरकार आलम आप पे मेरी जान कुर्बान, उसके बाद मैं किसकी इज्जत करूं? तो कहा अपनी माँ की। अब वो बहुत परेशान हुआ, तो वो कहा हुजूर मकबूल ये फरमाइए उसके बाद? बोले अपने बाप की भी। तो हमारी मेहमान जी विकार हैं आज की, मोहतरमा जबीन साहिबा, वो तशरीफ लाए। यहाँ भी ठीक है, फिर यहाँ कौन रहेगा? आप ऊपर बैठ के सुन लीजिएगा। कोई चाहिए? हमारे मेहमान एजाजी हैं, आइए 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 आइए, मैं बदल देता हूँ, आइए। और हमारे मेहमान एजाजी हैं नाजिम नजीर साहब। नाजिम नजीर साहब को हम इसलिए बुला रहे हैं कि वो शायरी तो नहीं करते, लेकिन याद रखिए मुस्तकबिल का कोई सहाफ़ी होगा जिसकी किताबें सबसे ज़्यादा शौक़ से पढ़ी जाएंगी, कश्मीर में ही नहीं कश्मीर के बाहर भी, तो वो होंगे जनाब नाजिम नजीर साहब। तशरीफ़ लाइए।
और मैं आइंदा भी ये ऑडिटोरियम किसी मुशायरे के लेने के लिए अभी से सलाम करना शुरू करता हूं। उसका भी जिस्म है लेकिन ये और बात है, उसका भी जिस्म है लेकिन मुझे वो शख्स तो हर रंग में लगे खुशबू। वाह वाह नहीं आ रही है भाई, शेर सिंह ये और बात है वाह वाह की, ये और बात है, उसका भी जिस्म है लेकिन मुझे वो शख्स तो हर रंग में लगे खुशबू। मैं अपने आप सब लोगों के लिए खास तौर से मैं अपने घर के सभी फूल उसको दे दूंगा। सर शेर अर्ज किया राज साहब, मैं अपने घर के सभी फूल उसको दे दूंगा, जरा सी देर की खातिर अगर रुके खुशबू। शेर अर्ज किया, किसके आगे में बैठेंगे आप? शबनम के साथ जो बैठे हैं, मैं अपने घर के जितने भी फूल मेरे हैं वो सारे खुशबूदार है, कसम से एक भी आर्टिफिशियल नहीं है। मैं अपने घर के सभी फूल उसको दे दूंगा, जरा सी देर की खातिर अगर रुके खुशबू। वो मुझको छू ले तो शबनम में डल के चमकू जो, वो मुझको छू ले तो शबनम में डल के चमकू जो, मैं उसको हाथ लगा दूं तो वो बने खुशबू। मैं उसकी खोज में, गुलशन साहब, मैं उसकी खोज में कैसे बिखर गया हूं चिराग। मैं उसकी खोज में, आखिर की बात है, मैं उसकी खोज में कैसे बिखर गया हूं चिराग। आदिल साहब, हवा कहे मेरा अफसाना, हवा कहे मेरा अफसाना तो सुने खुशबू। मेरी गजल की किताबों में भी बसे खुशबू, जो बात मुझको हो कहनी उसे कहे खुशबू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोस्त अजीज वाइस प्रेसिडेंट साहब हर मुशायरे में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई रंग भी लाओ, कुछ फूल भी बात करो, कुछ ऐसी बात भी करो। शेर पेश करता हूं, उनकी नजर करता हूं दो शेर। कि हूं देख तुझसे आगे गो बेतवस्सुली है, हूं देख तुझसे आगे गो बेतवस्सुली है, खाली है जेब सर पर मेरे कराकुली है। और अरबी है और ना आजमी, अरबी है और ना आजमी, दिल भारती है मेरा। अरबी है और ना आजमी, दिल भारती है मेरा। उस्मानी है गिना में, जुरत में काबुली है, जुरत में काबुली है। और चंद और शेर दो तीन, एक दो शेर सुना के मैं आगे बढ़ता हूं कि चेहरा दर चेहरा मेरी खोज में फिरता होगा, चेहरा दर चेहरा मेरी खोज में फिरता होगा, जब भी बन ठन के वो सड़कों पे निकलता होगा। यहाँ कश्मीर में एक बड़ा खूबसूरत सीन होता है पहाड़ों के दामन में, जब बादल जम जाते हैं, उदय उदय पहाड़ और कासनी कासनी बादल। शेर देखिए कि देखकर ऊदी घटाओं से पहाड़ों का मिलन। सिंबॉलिक है साहब, मैडम आपकी नजर करता हूं। देखकर देखकर ऊदी घटाओं से पहाड़ों का मिलन, शरबती आंख में काजल भी खटकता होगा। ये नकीब साहब समझेंगे शरबती आंख क्या होती है। फिर पढ़ता हूं शेर कि देखकर ऊदी घटाओं से पहाड़ों का मिलन, शरबती आंख में काजल भी खटकता होगा। और हमारे अपने जमाने की बात है कि 14वीं रात के, आज भी 14वीं रात है, 14वीं रात के, 14वीं रात के 14वीं शब के हंसी सुरमई माथे पे हनीर, वो भी बेटा होगा। शरबती
वो भी मेरी ही तरह चांद को चखता होगा। और साहब शेर सुनिए कि कोई ख्वाबों के दरीचों से सदा देता है, कोई ख्वाबों के दरीचों से सदा देता है, फिर मेरी नींद की दीवार गिरा देता है। और शायद इस दौर का वो शख्स पैगंबर होगा। आपकी नजर करता हूँ गुलाम नबी ख्याल साहब, शायद इस दौर लगाना है, खोद कर फेंक दो पुरानी घात। जनाब नकीबुल इस्लाम साहब तशरीफ लाइए, जल्दी आइए साहब, यहाँ जल्दी जल्दी का मामला है बहुत। आइए आइए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया सदर महफिल की इजाज़त से। नज़्म का उन्वान है मादी दुनिया। इंसान अगर सच्चा होता है उसकी कदर नहीं होती है, जब वो मादा बनता है, मैटेरियलिज्म जिसको कहते हैं। आप अलीगरीन, मैं भी अलीगरीन, तो आपकी नज़र है। तो इस नज़्म का उन्वान है मादी दुनिया। मुलाज़ा फरमाएं। आज दुनिया बहुत ही मादी है, तुम भी ढल जाओ इन ख्यालों में और घिर जाओ ऐसे ख्वाबों में, क्योंकि इंसान बन के मैंने देखा है, अपनी इज्जत को मैंने खोया है, कोई हासिल नहीं है कदरों को, रौद डाला है मैंने जज्बों को। ये ज़माना बहुत ही ज़िद्दी है, और ये कश्मीरी ज़िद्दी नहीं, ज़िद माने एडमेंसी आता है। ये ज़माना बहुत ही ज़िद्दी है, अपनी इंसानियत को शल कर लो, मादा उसमें कोई हल कर लो। ऐसा हो मादा जो महंगा हो, मान लो जैसे कोई सोना, क्योंकि दुनिया में सोने की कदर है, पूरी दुनिया उसी से चलती है, और औरत भी उसी से चलती है। तो इसी तरफ इशारा है, देखिए, ऐसा हो मादा जो महंगा हो, मान लो जैसे सोना हो, फिर तुम्हारा उरूज भी होगा, कद्र कीमत का भी उरूज होगा। यही सोना है जिससे जेवर है, सोने से जेवर बनता है, यही सोना है जिससे जेवर है, बदले औरत के कितने तेवर हैं। आज सोने में कितनी ताकत है, जिससे शौहर की होती इज्जत है। कभी नाजुक गले का हार हो, ये जो नेकलेस जिसको कहते हैं, कभी नाजुक गले का हार हो तुम, उंगलियों में कभी समाये हो। यही सोना है, फर्क को मिटाता है और मेयार जिंदगी बनाता है। वरना रानी तो रानी होती नहीं, वरना रानी तो रानी होती नहीं, कोई औरत गरीब होती नहीं। काम इंसान जो कर न पाया है, आज सोने ने कर दिखाया है। खूब तुमने, मैंने खूब तुमने तुम्हें पुकारा है, अपने इंसान को जगाया है। खूब अच्छा चलो ये काम हुआ, अपनी इज्जत का एहतराम हुआ। तुम न सोना जो आज बन पाते, फिर न हासिल मुकाम न कर पाते, क्योंकि दुनिया बहुत ही मादी है और जमाना बहुत ही जिद्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब नकीबुल इस्लाम साहब, जिन्होंने मादियत की बात की। अरे भाई, हर चीज मादी हो गई है। अब मैं आगे जाना नहीं चाहता कि है मुझसे महंगा तुम्हारे बाजार का खिलौना, है मुझसे महंगा तुम्हारे बाजार का खिलौना। मैं अपनी सांसों का दे रहा हूं लगान अब तो आइए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपनी दौर के जदीद शायर और वादी के नौजवान शायर और हमारी बज़्म के मेंबर जनाब अशरफ आदिल साहब को। अशरफ आदिल साहब तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। गजल का मतला है, न दिल न जिस्म मेरे राबते में कोई नहीं, न दिल न जिस्म मेरे राबते में कोई नहीं, गुबारी राह के सिवा रास्ते में कोई नहीं। शुक्रिया। न दिल, शुक्रिया। न दिल न जिस्म मेरे राबते में कोई नहीं, गुबारी राह के सिवा रास्ते में कोई नहीं।
अब ये शेर, अभी तो चांद की बोलेगी खुद परस्ती और, अभी तो चांद की बोलेगी खुद परस्ती और, शबे अना के सिवा फायदे में कोई नहीं। अब ये शेर, सफर सफर में रही साथ आबला पाई, सफर सफर में रही साथ आबला पाई, जनून दिल के सिवा काफिले में कोई नहीं। अब ये शेर, उड़ान भर भी गए वो सभी परिंदे अब, उड़ान भर भी गए वो सभी परिंदे अब, उजाड़ रुत के सिवा घोंसले में कोई नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। उड़ान भर भी गए वो सभी परिंदे अब, उजाड़ रुत के सिवा घोंसले में कोई नहीं। पुरानी राह से आए हैं कितने दीवाने, पुरानी राह से आए हैं कितने दीवाने, मोहब्बतों के नए सिलसिले में कोई नहीं। अब ये शेर, हिसारी जात में जैसे बहार आई है, हिसारी जात में जैसे बहार आई है, मजा के दिल के सिवा जायके में कोई नहीं। अब ये शेर खास तौर पर, फजाने फूल के रुख पर छिड़क सी दी शबनम, फजाने फूल के रुख पर छिड़क सी दी शबनम, हवा न रुत न सबा कायदे में कोई नहीं। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। फजाने फूल के रुख पर छिड़क सी दी शबनम, हवा न रुत न सबा कायदे में कोई नहीं। अब मक्ता मुलाहिजा फरमाइए, हमारी आंख को भाया नहीं कोई आदिल, हमारी आंख को भाया नहीं कोई आदिल, निगाहे यार के भी जाविये में कोई नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम शुक्रिया शुक्रिया। हमारी आंख को भाया नहीं कोई आदिल, निगाहे यार के भी जाविये में कोई नहीं। न दिल न जिस्म मेरे राबते में कोई नहीं, गुबारी रह के सिवा रास्ते में कोई नहीं। शुक्रिया। ये थे जनाब आदिल अशरफ साहब, इन्होंने आपके सामने अपना कलाम पेश किया। अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी बड़े शेर, मैं यहाँ पर शेर पढ़ के या कुछ और पढ़ के दावत कलाम दूंगा जनाब गुलजार शबनम साहब को, बल्कि मैं ये कह दूं कि आइए गुलजार शबनम साहब, जब आप जाएंगे तो मैं आपकी मोहब्बत भी 3-4 शेर पढ़ूंगा। तशरीफ लाइए। हम जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, इसको तभी तवावत नहीं देना चाहते। वैसे तो मैं शोरा की सब में शामिल नहीं हूँ, लेकिन एक तहमत सी लगी है और इस तहमत का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। एक गजल से पहले 2 अशर। दिल में वो उतर जाए हमने नहीं सोचा था, दिल में वो उतर जाए हमने नहीं सोचा था, तकदीर संवर जाए हमने नहीं सोचा था, इतना करम करे वो सपनों में मेरे आकर, वाह वाह वाह, इतना करम करे वो सपनों में मेरे आकर, आंखों में घर बसाए हमने नहीं सोचा था। 2 शायर और हैं, 1 मिनट। दूसरी गजल की चंद अशर। लबों पे तबस्सुम आंखों में इश्तियाल रखता है, लबों पे तबस्सुम आंखों में इश्तियाल रखता है, मैं लाख मनाऊं तो भी मलाल रखता है। वो इस तरह से मेरे साथ लड़ता और झगड़ता है, बहुत खूब। वो इस तरह से मेरे साथ लड़ता और झगड़ता है कि एतमाद भी मेरा बहाल रखता है। हिजाब में भी नजर न लगी किसी की तौबा,
हिजाब में भी नजर न लगे किसी की तौबा, वो इस कदर हुस्न व जमाल रखता है, ये मौजिज़े से किसी तौर कम नहीं शबनम, ये मौजिज़े से किसी तौर कम नहीं शबनम, तेरा रकीब ही तेरा ख्याल रखता है, लबों पे तबस्सुम आंखों में इश्तियाल रखता है, मैं लाख मनाऊं तो भी मलाल रखता है। शुक्रिया। ये थे हमारे शबनम साहब, जो तखल्लुस है उनका, और उन्होंने दिल के तारों को हमारे छेड़ दिया। अचानक कुछ मित्रे आए कि पलकों की मिशगान संभाले, यादों की दुकान पे तन्हा, पलकों की मिशगान संभाले, यादों की दुकान पे तन्हा, दर्द की दौलत तोड़ रहा हूँ माशा माशा रत्ती रत्ती, और मेरी खुशबू तेरे तन में घुल जाएगी रफ्ता रफ्ता, मेरी खुशबू तेरे तन में घुल जाएगी रफ्ता रफ्ता, खुद को तुझ में घोल रहा हूँ माशा माशा रत्ती रत्ती। आइए इन्हीं शेरों को हम एक अजीम नज़्म निगार की दावत देंगे। उनकी बड़ी हैसियतें हैं यहाँ से इस शहर के अंदर। सबसे बड़ी हैसियत मेरे लिए उनकी है, वो दोस्त बनाते हैं और जिसको बनाते हैं उसको छोड़ते नहीं। दूसरी बड़ी हैसियत मेरी उनकी नज़र में है, मेरी नज़र में है कि ब्रेवरी विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। वो बहादुर आदमी है। मेरी मुराद है, मैंने उनकी एक नज़्म सुनी थी पिछले साल और मैं उनका दीवाना हो गया। हमारी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली हमें कि हम दो उनको बाहर उनसे कहीं मिलते, उनसे कहते भाई हमें लिख के दो, हम आपकी नज़्म से बहुत मुतासिर हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप जैसी नज़में भी लिखें। मेरी मुराद है, इनको स्टेज पे बैठना था लेकिन कुछ मजबूरियां हो गई, जनाब बशीर दादा साहब से वो आए और अपनी नज़मों से हमें नवाजें। उनकी बगल में इम्तियाज़ बजाज साहब बैठे हुए हैं, बड़े मोहतरम हैं वो, और हम चाहेंगे वो भी पढ़ें, लेकिन उन्होंने न पिछले मुशायरे में हमारे पढ़ा, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर जो करम हम पे किया है, हम पठान हैं बेसिकली, हम याद रखते हैं हमारे दोस्तों को भी और दुश्मनों को भी। जनाब बशीर दादा साहब। सवाल ये कि मुझे बताया नहीं गया था कि मुझे भी शेर यहाँ पे सुनानी है। अब इत्तेफाक ये है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी जो अहलिया है वो आवाज़ देती है कि आई कार्ड आप भूल तो नहीं गए। मैंने कहा नहीं, शायर कुछ हैं वो मैं भूलता नहीं कभी, आई कार्ड रखूँ न रखूँ लेकिन कुछ शायरी में रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कहीं ना कहीं फंस जाऊँगा जैसे आज फंस गया। अब चूंकि डॉक्टर तरीन साहब जो है वो सिचुएशन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने 50% मुशायरा खुद अभी सुनाया, तो ये है कि जब आपको पोजीशन मिले तो इसका सही इस्तेमाल करें, वो कर रहे थे। तो मैं भी, मेरे पास जितना भी है मैं भी कोशिश करूँगा। एक नामुकम्मल गज़ल है, चूँकि गज़ल का अनवान नहीं होता है, लेकिन मैं फितरतन बागी हूँ, मैं अनवान रखता हूँ, कातिल है इसका अनवान। सवाल ये नहीं कैसे हमारा कत्ल हुआ, शुजात बुखारी को वो हटते नहीं अभी नजरों से। सवाल ये नहीं कैसे हमारा कत्ल हुआ, सवाल ये नहीं कैसे हमारा कत्ल हुआ, सवाल ये है कि हम कत्ल कब तलक होंगे। अरे वाह वाह वाह, पढ़ते रहिए। सवाल ये नहीं कैसे हमारा कत्ल हुआ, सवाल ये नहीं कैसे हमारा कत्ल हुआ, सवाल ये है कि हम कत्ल कब तलक होंगे और हमारे खून का ज़मीन पर कोई सुराग नहीं। हमारे खून का ज़मीन पर कोई सुराग नहीं, हमारे कत्ल के शाहिद कई फलक होंगे। अरे वाह 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 वाह। हमारे खून का ज़मीन पर कोई सुराग नहीं, हमारे कत्ल के शाहिद कई फलक होंगे,
सवाल ये नहीं कैसे हमारा कत्ल हुआ, सवाल ये है कि हम कत्ल कब तलक होंगे। इम्तियाज अहमद बज़ार साहब के नाम। ये दिल हजार हा कातिल गमों का मस्कन है, ये दिल हजार हा कातिल गमों का मस्कन है, जो हम न होंगे तो वो बर लबे सड़क होंगे, बेठिकाना बन जाएंगे। ये दिल हजार हा कातिल गमों का मस्कन है, जो हम न होंगे तो वो बर लबे सड़क होंगे। सवाल ये नहीं कैसे हमारा कत्ल हुआ, सवाल ये है कि हम कत्ल कब तलक होंगे। हमारे कत्ल की साजिश में जो भी शामिल हों, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है यार। हमारे कत्ल की साजिश में जो भी शामिल हों, हमारे साथ वो मोहसिन मजार तक होंगे, होंगे जरूर। पढ़ते रहो यार। हमारे कत्ल की साजिश में जो भी शामिल हों, हमारे कत्ल की साजिश में जो भी शामिल हों, हमारे साथ वो मोहसिन मजार तक होंगे। सवाल ये नहीं कैसे हमारा कत्ल हुआ, सवाल ये है कि हम कत्ल कब तलक होंगे। एक नज़्म है, जी करता है कि आपको बहुत बोर करूं कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हम देंगे इंशाल्लाह। इसका अनुमान है, नज़्म का तो होता है, इसका अनुमान है रुखसाना जी। नहीं, अब क्या है कि मैं थोड़ा मोनोटनी जो है वो ब्रेक करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक ही को बार बार सुन रहे हैं। सीता की दास्तां कभी मरियम का सोज़ो गम, बहुत खूब। सीता की दास्तां कभी मरियम का सोज़ो गम, अग्नि में सोखता हूँ मुसाफत अजाब में, गालिब चहार सू। सीता की दास्तां कभी मरियम का सोज़ो गम, अग्नि में सोखता हूँ मुसाफत अजाब में, गासिब चहार सू है तो आवाज दूं किसे, कातिल है एक तरफ मेरा जाबिर है एक तरफ, दोनों मेरे वजूद को छिलने में मस्त हैं, किसका अटूट अंग या जुज़्वे जिगर हूं मैं। अरे वाह। दोनों मेरे वजूद को छिलने में मस्त हैं, किसका अटूट अंग या जुज़्वे जिगर हूं मैं। दावा तो कर रहे हैं ये मुझसे निकाह का, हिम्मत है सबके सामने पूछे कबूल है। दावा अगर बजा है तो फिर क्यों पूछते नहीं। सीता की दास्तां कभी मरियम का सोज़ो गम, अग्नि में सोखता हूँ मुसाफत अजाब में, गासिब चहार सू है तो आवाज दूं किसे, कातिल है एक तरफ तो मेरा जाबिर है एक तरफ, दोनों मेरे वजूद को छिलने में मस्त हैं, किसका अटूट अंग या जुज़्वे जिगर हूं मैं। दावा तो कर रहे हैं ये मुझसे निकाह का, हिम्मत है सबके सामने पूछें कबूल है। दावा अगर बजा है तो क्यों पूछते नहीं। पूछें जो मुंसिफीन मुहज़्ज़ब समाज भी, दिल में शिगाफ दे के दिखाऊंगी दाग दाग, सच्चाक आरज़ू कई तज़लील के निशान, दस्ते जिफा ने नोश गिरा दी मेरी अना, दहशत के ज़ेर दस्ते जिफा ने नोश गिरा दी मेरी अना, दहशत के ज़ेर बाग का सरताज सरनिगूं, तितली मिसाल धड़कने आहो फुगा मेरी, फूलों पे ओस आग के रहमो करम पे है, रूपोश ख्वाब जैसे कमीगाह में दम खुद, फूलों पे ओस आग के रहमो करम पे है, रूपोश ख्वाब जैसे कमीगाह में दम खुद, सूखे हुए गुलाब शगुफे लहू में तर, अपनों ने काम गैर का आसान कर दिया, सबने चमन चमन को कफस में बदल दिया। पूछे जरा तो मैं भी दिखाऊंगी दाग दाग, पूछे सही कबूल है पूछें कबूल है, एक बार पूछ लें तो ये नासूर बर सके, खुद आर पार पाक के जिया भी हो सके। अरे वाह। लेकिन एक बार पूछें और प्लिबिसिट कराएं। क्या बात है, सबके सामने निकला। ये थे बशीर दादा साहब, और वो कह रहे हैं कि मैंने आधा मुशायरा पढ़ दिया तो क्यों ना मैं पूरे मुशायरा पढ़ दूं। तो कैसे खुले ये माजरा, कैसे खुले ये माजरा, बशीर दादा कैसे खुले ये माजरा,
चेहरों की असलियत है क्या, कैसे खुले ये माजरा, चेहरों की असलियत है क्या, शहरे हवस की भीड़ में हर कोई नकाब पोश है, तेरी खुदी को क्या हुआ, जबर पे क्यों खामोश है, तेरा ज़मीर मर गया या तू खुदी फरोश है। ये 4 मित्रे मैंने पढ़े हैं, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मोहतरमा हमारी रुखसाना जबीन साहिबा के नाम। मुझे इस चीज़ का अफसोस रहा कि जब वो रेडियो में थी तो मैंने उनकी निगरानी में कोई मुशायरा, कोई गज़ल, कोई नज़्म नहीं पढ़ी। खैर कोई बात नहीं, रुखसाना जबीन साहब तशरीफ लाइए और अपनी गज़ल से हमें नवाजिए। 2 और रह गए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। अभी तक मैं हैरान थी कि हनीफ तरीन साहब का की याददाश्त जो है बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन अब समझ गई कि बहुत ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप साल में जितनी बार आते थे रेडियो में आपकी रिकॉर्डिंग तो हर बार होती थी और बार बार होती थी, वो सब भूल गए। ये इस दुनिया का दस्तूर है, इंसान बाद में सब कुछ भूल जाता है, आप ही का कसूर नहीं है। ये है ना, नहीं, यहाँ भी सिर्फ मुरादाबादियों का कसूर नहीं है, कश्मीरी भी इस मामले में आता था। अगर आप यहाँ पे गवाही नहीं देती तो आते रहे और बार बार आते रहे हर जमाने में। तो मैं चंद अशआर अर्ज कर रही हूँ, ये नहीं सुनाने का इरादा है, मुख्तसर से चंद अशआर मैं पेश कर रही हूँ। जी बहुत चाहता है रोने को, जी बहुत चाहता है रोने को, अब बचा क्या है और खोने को, अब बचा क्या है और खोने को, ये घड़ी जागने की है, जागो, ये घड़ी जागने की है, जागो, उम्र सारी पड़ी है सोने को, उम्र सारी पड़ी है सोने को, ये मेरे ख्वाब की नहीं ताबीर, ये मेरे ख्वाब की नहीं ताबीर, हाँ वही हो रहा है होने को, हाँ वही हो रहा है होने को, जी बहुत चाहता है रोने को। खेत क्यों भर दिए हैं लाशों से, खेत क्यों भर दिए हैं लाशों से, और क्या कुछ नहीं था बोने को। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खेत क्यों भर दिए हैं लाशों से, और क्या कुछ नहीं था बोने को, बोझ है ख्वाहिशों का ढोने को, रास्ते भी बहुत है ना हमवार, रास्ते भी बहुत है ना हमवार, बोझ है ख्वाहिशों का ढोने को, शिकवा था दिल रहा नसीने में, वाह वाह वाह, शिकवा था दिल रहा नसीने में, मीठा खंजर दिया चुभोने को, वाह वाह वाह, मीठा खंजर दिया चुभोने को, जी बहुत चाहता है रोने को, और अब बचा क्या है और खोने को। शुक्रिया। मैं डॉक्टर हिलाल अहमद साहब से और जाफर जबील साहब से बहुत आजिज़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमने इस मुशायरे के लिए 6, 7, 8 शायरों को बुलाया था और उनका अनाउंसमेंट भी बाकायदा अखबारों में हुआ था। हम इंशाअल्लाह अगले मुशायरे में आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपका कलाम ज़रूर सुनेंगे। अगर यहाँ पर परवेज़ मानूस साहब तशरीफ़ रखते हैं तो वो तशरीफ़ लाएं, वो भी नहीं आए, ना जनाब सतीश विमल साहब आए, तो अर्ज करूँगा कि कोई दुनिया में सी मुज़र के एवज़ हमारा वाइस प्रेसिडेंट का भाग जाता है, उनका फंक्शन है भाई, आपके सामने आपने सबके शेयर नोट किए, मैंने आपको घर पे वो दी थी अपनी एक ऐसी किताब, अभी हो जाएगा सर, नहीं हो जाएगा ना, भूल जाओगे सब। कोई दुनिया में सी मुज़र के एवज़, साहब की तवज्जो चाहूंगा इन 4 मित्रों पर
और उन दो शायरों के कलाम के लिए जिनका कलाम कलाम माना जाता है तमाम दुनिया में, कि कोई दुनिया में, और मैं इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा एजी खान साहब से कि वो यहाँ आके तशरीफ स्टेज पे तशरीफ रखें। अरे भाई फिल्म के आदमी हो, मालूम है, बहुत मशहूर है। ये खाली जगह बुरी लग रही है हमें, ये बात है। आइए आइए जरा इनको बिठाना खान साहब को। ए बाबू ये आ रहे हैं, इनको बिठाओ उस कुर्सी पे। जरा गौर चाहूंगा मैं, गौर तलब 4 लाइनें हैं खान साहब, आपकी नजर करता हूं। अच्छा है कि मेरे इधर इसीलिए बिठाया है आपको कि आपकी नजर कर दूं, कुछ असर होगा। नहीं आपकी नजर हो जाए। शुक्रिया। कि कोई दुनिया में सीनो ज़र के एवज क्या खरीदेगा प्यार औरत का, कोई दुनिया में सीनो ज़र के एवज क्या खरीदेगा प्यार औरत का, ऐ मुमकिन है मुफ्त मिल जाए कीमतन तो ये मिल नहीं सकता। ये 4 मिसरे मैंने पेश किए उर्दू की अजीम शायरा और कश्मीर की इज्जत यहाँ भी और बाहर भी मोहतरमा शबनम अशाई साहिबा के कलाम के लिए उन्हें ज़हमत दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। सदर की इजाज़त से बहुत छोटी छोटी 3 सतरी नज़में हैं। जिससे ज़िंदगी खामोश न कर सकी, जिससे ज़िंदगी खामोश न कर सकी, वो आईसीयू में चुप हो गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जिससे ज़िंदगी खामोश न कर सकी, वो आईसीयू में चुप हो गया। एक और नज़्म है 3 सतरी। वाह तुम जिस धुन पे नाच रहे थे वो रक्कासा मौत निकली, वाह, तुम जिस धुन पे नाच रहे थे वो रक्कासा मौत निकली, मैं किससे कदम मिलाऊं। वाह। एक्चुअली मेरे वालिद मुल्क अदम के सफ़र पर अभी हाल ही में निकल चुके हैं, सो अभी वही सब गूंजता है। उस जमीन ने तुम्हें कैसे निगल लिया जिसके सीने में तुम धड़कते थे। वाह 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 वाह, फिर पढ़ो भाई वाह। उस जमीन ने तुम्हें कैसे निगल लिया जिसके सीने में तुम धड़कते थे, जिसकी नसों में तुम दौड़ते थे फिरते थे, कैसे थम गए तुम उस जमीन में। हैरानी की काली धुंध मेरे वजूद में फैल गई है, हैरानी की काली धुंध मेरे वजूद में फैल गई है, और बाग में सफेद गुलाबी जर्दी माइल शगुफे खिल रहे हैं। वो जंगली पेड़ भी जिन पर तुमने बबूगोशा के पैबंद लगवाए थे खिले हुए महक रहे हैं तुम्हारे बाग में, जिसके एक कोने में तुम थम गए हो कब्र में। पापा जरा एक बार उठ के तो देखो, सुन के तो देखो। वाह 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 वाह। बहरहाल मुशायरे पे आते हैं। दिलासा नहीं मुझे हक दे दो, दिलासा नहीं मुझे हक दे दो, मोहब्बत मांगने का हक, मोहब्बत देने का हक, मोहब्बत जीने का हक। क्या बात है। दिलासा नहीं मुझे हक दे दो, मोहब्बत मांगने का हक, मोहब्बत देने का हक, मोहब्बत जीने का हक। अब के न कोई इल्जाम मुकद्दर को दूंगी, नहीं अपने बखिए उदेर दूंगी। मुझे खाक करने की मश्क में खुदा को कटहरे में खड़ा मत करो, शातिरों की अदालत में नहीं, मोहब्बत के सजदे में आने दो। नफरतों की हरियाली मुझ में मत उगने दो, नफरतों की हरियाली मुझ में मत उगने दो। नीयतें जो पाक नहीं मुझ में मत बोने दो, मुझे अपनी मिट्टी से रल मिलकर जीने दो। दिलासा नहीं मुझे हक दे दो। असल में मुशायरे जैसा कोई मूड नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा जाए। नहीं हो ये वक्त कोहराम में कौन लाया है मुझको, ये वक्त कोहराम में कौन लाया है मुझको, मैं तो धनक के रंग में रंग रही थी। ये वक्त कोहराम में कौन लाया है मुझको, मैं तो धनक के रंग में रंग रही थी। ये गुलाल गम की होली कौन खेल गया नीले आसमानों में, रंग बिरंगी तितलियों के पर कौन मसल रहा है सब्ज़ारों में। रेत कौन बिछा रहा है कुतर के रेशम, रेत कौन बिछा रहा है दीवान खानों में। वो जो भी है तो गुनहगारों में,
आकाश धनक रंग में एक बार वो भी रंग जाते, आकाश धनक रंग में एक बार वो भी रंग जाते, गुनाह उनके धुल जाते, मोहब्बतों की सैराबी में अपनायत में घुल जाते, महकीले फूल खिल जाते, वक्त कोहराम टल जाता। मेरे ख्याल में बस एक छोटी सी नज़्म एक चलती चलती। बिल्कुल, बहुत अच्छी शायरा हो, वेरी गुड। देख 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 जरा शान आशिकी देख, देख देख जरा शान आशिकी देख, मोहब्बतों की तलब में लूटी हुई वो किस शान से रंगे इश्क में मलबूस कलीदे संभाल रही है, मोहब्बतों की हशर सामानियां महफूज कर रही है। अरे वाह 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 वाह। देख देख जरा शान आशिकी देख, मोहब्बत की तलब में लुटी हुई वो किस शान से रंगे इश्क में मलबूस कलीदे संभाल रही है, मोहब्बतों की हशर सामानियां महफूज कर रही है। इश्क की तमाम दौलत जैसे उस बावली के खजानों में हो। अरे वाह 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 वाह। ये थी आने वाले वक्त की उस शायरी की शायरा जो आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान, उर्दू अदब, कश्मीर में बाद में आई, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में प्रोज पोइट्री चल रही है और अपनी दाद ले रही है। शबनम के जो सिंबल्स हैं, शबनम जो इश्तिहारे इस्तेमाल करती है, उसके लिए सोचना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। इस तरह की शायरी हमने माना कि ये शायरी इतनी अपील नहीं करती सुनने में, क्योंकि सबसे ज्यादा जबरदस्त कोई चीज है जो आदमी को वो मुतासिर करती है तो वो ठुमका है, ठुमके वाली शायरी है, ठुमके वाली बातें हैं। बहरहाल ये शबनम थी। इससे पहले कि मैं अपने सदर मोहतरम को गज़ल कश्मीर के दावत कलाम दूं, मुशायरा खत्म करूं, 2 मिनट के लिए मैं अपने अजीज दोस्त नाज़िम नदवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट हमारे सामईन को दें। जनाब नाज़िम नदवी साहब, क्योंकि अखबार में आएंगी ये बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐवान सदारत में तशरीफ फरमा हमारे डायरेक्टर महकमा इत्तलात जनाब गुलजार शबनम साहब, मारूफ शायर अदीब रफीक राज साहब, साहब डायरेक्टर वो अजीम शायरा रुखसाना जबीन साहिबा, और एक और अजीम शायरा डॉक्टर शबनम अशाई साहिबा, खान साहब, इससे पहले गुलाम नबी ख्याल साहब थे, और सफ़ सामीन में अदीब, शोरा और सुकार साहब भी, और आलमी मरकज़ उर्दू मरकज़ मजलिस दिल्ली JNK के फाउंडर सदर डॉक्टर हनीफ तरीन साहब, नायब सदर बशीर चराग साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आपके सामने भी बात आई कि ऐवान सदारत में या सफ़े सामीन में सभी ने अशार पढ़े, शायरी की, और मैं इस हवाले से नाअहल हूँ कि मुझ में ये जहानत नहीं, काबिलियत नहीं कि मैं भी शायर लिखूं। जमाना आपको हर जमाना ढूंढता रहता है। मैंने हामिदी कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा है, देखा नहीं है। मैंने रफीक राज साहब को पढ़ा था, अब देख रहा हूं, ये खुश नसीबी है। मैं रुखसाना जबीन साहिबा को देख नहीं रहा था, लेकिन पढ़ रहा था। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं शायरी करूं, क्योंकि मेरे शायर जो हैं ये मेरे सरजमीन में अजीम हैं, इसलिए मुझे शायरी करने की जरूरत नहीं है
क्योंकि मेरे लिए यही मशअल राह है। मैं इनकी शायरी पढ़कर, आप जरा सर, मैं इनकी शायरी को ही पढ़कर अपना मिशन चलाऊंगा। हमें ये फक्र है, अगर डॉक्टर हनीफ तरीन साहब मुराद आबाद में एक डॉक्टर की हैसियत से शायर बन गए, तो हमारी सरजमीन में डॉक्टर नजीर मुश्ताक साहब भी एक डॉक्टर होकर भी एक शायर, एक अफसाना निगार बन गए। और हमें ये फक्र है कि यहाँ अब हमारे अदीबों पर रिसर्च की जा रही है, और वो भी बाहर की यूनिवर्सिटियों से, जिनमें हमारे वाहशी सईद साहब हैं, जिनमें हमारे शाहजाद बिस्मिल साहब हैं। और इस हवाले से हम कितने अजीम हैं, हम इन लोगों को पढ़ते हैं। और एक अजीब सी कैफियत यहां तारी हुई उस वक्त, मेरे ख्याल में ये तारीख में आज एक बदलाव आ रहा है कि हमारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन साहब जो मौजूदा हैं वो भी शायर हैं, और ये अखबार वालों के लिए एक बड़ी खुशनसीबी है। मैं हर बार, मैं तो शायर नहीं हूं, लेकिन शायरों की महफिलों में जाकर उनसे कुछ अखज़ करता हूं, क्योंकि शायर अजीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, उसने ये कहा है कि एक दिन वो सफर के लिए जा रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं, सफर के लिए जा रहे थे और अपने सफीर से कहा कि आपको उमैया बिन सलब का कोई शायर याद है? कहा जी हां। शायर सुनाते गए तो जहां तक 100 शायर सुनाए, 100 इशार सुनाने के बाद कहा कि और कोई शायर है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कैसी शायरी है? उबैद एक शायर थे, उसने कहा अल्लाह कुल्ली शैइन बातिला, कहा कि जो मैं बैसत पैगंबर कहता हूं वो शायर ने अपनी शायरी के जमाने में शायर में कहा है। वो कि आप कितने अजीम हैं, लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना कि शायरी के दौरान, क्योंकि आपको पढ़ा जा रहा है, आपको देखा नहीं जा रहा है, आपके हर लफ्ज को आप उसी तरह से एक हार बना के हमें देते हैं, जिस तरह से वो, जिसको हम कश्मीरी में मख्तमाल कहते हैं, हर लफ्ज को मिलाकर आप हमें कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल कम लफ्जों में, कम अल्फाज में एक तारीख दे रहे हैं। ये तारीख जो दे रहे हैं आप, हमें हर स्टेज पर इकबाल को बोलना पड़ता है। क्यों? आखिर इतने स्कॉलर आए तो उनका नाम नहीं आता है, लेकिन हर एक शायर, उनको तो हम विर्द ज़बान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि फर्द कायम रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बीरूनी दरिया कुछ नहीं। इस हवाले से कि आप जो हैं, आप हमारे लिए किताब हैं, आप लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम नाअहलों के लिए आप मशअल राह हैं। और आपको जमाना क्या कहे, लेकिन मीर दर्द का शर आप पर सादिक आता है, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। आखिर पर मैं इन हजरात के सामने, इनके साथ रहकर मुझे शर्फ हासिल हुआ कि मैं भी किसी तारीख में आ जाऊं। क्या मैं रफीक राज साहब के साथ था, डॉक्टर शबनम अशाई साहिबा के साथ था, यहाँ पर हमें सफ़े सामीन में बैठे एक से बढ़कर एक, यहाँ उर्दू काउंसिल के कायमी मुकाम जनरल सेक्रेटरी शाहबाज हाकबारी साहब है, यहाँ पर आपको मिलते हैं गुलशन कल्चरल फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बर्दनी साहब, यहाँ पे आपको
जिनका मैंने नाम नहीं सुना था लेकिन काम सुना था, डॉक्टर नजीर साहब हमारे जिले से ताल्लुक रखने वाले हैं, रशीद कानिसपुरी साहब, और यहाँ पंडित जी साहब हैं, वो सब जो है आप, मैंने कहा कि हम आपको पढ़ते हैं। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस आलमी उर्दू मजलिस दहली का इस हवाले से कि इन्होंने आज बिल्कुल इंतखाब किया था सहाफत और अदब में। इन्होंने 4 शख्सियात को इनामात से नवाजा, और मैं ये कहूंगा कि दावा बहुत लंबा बोल गया यार, लेकिन 10 बंदे हो जाते। जनाब सर जी, आईवान सदारत में तशरीफ फरमा जनाब गुलजार शबनम साहब, जनाब बिनी खान साहब, मोहतरमा शबनम अशाई साहिबा और जनाब ताहिर साहब, और आलमी उर्दू मजलिस दिल्ली के नजीर साहब सदर और बहुत ही खूबसूरत शायर और बहुत अच्छे डॉक्टर भी और दोस्त भी, डॉक्टर हनीफ तरीन साहब, नायब सदर इसी तंजीम के जनाब बशीर चिराग साहब, और सफ़े सामीन में बैठे हुए आफताब महताब, एक से बढ़कर एक अदीब हैं। अब मैं आपके सब्र व तहम्मुल का दाद दे रहा हूँ कि आप शुरू से आखिर तक सब कुछ सुनते रहे, और अब इस नाचीज की बकवास भी आपको सुननी पड़ेगी। मुशायरे के लिए कुछ हल्की सी चीज पड़ी जाती है जो मेरा असलूब नहीं है। मैं अगर अपनी गजल आपको सुनाऊंगा आप महजूज नहीं होंगे, क्योंकि मेरी गजल पढ़ने की चीज है, सुनने की चीज नहीं। मैं इसलिए कुछ अशार जो मुझे बहुत आसान और सलीस लगे अपने साथ लाया हूँ, वो मैं आपके नजर करता हूँ। एक मतला और एक शेर सुनिए। तवज्जो का मोहताज जी। बेसदा हर्फ भी, बेसदा हर्फ गुल मचाते हैं। गुल मचा दे, अरे क्या बात है। बेसदा हर्फ गुल मचाते हैं जब किसी की समझ में आते हैं। अरे वाह। बेसदा हर्फ गुल मचाते हैं जब किसी की समझ में आते हैं। तू हवा है फजा में रक्सा है। क्या बात है। तू हवा है फजा में रक्सा है, हम तो पत्ते हैं कब कपाते हैं। क्या बात है, फिर पढ़िए। तू हवा है फजा में रक्सा है, हम तो पत्ते हैं कब कपाते हैं। वाह। और एक मतला और एक शेर, एक और गजल। रेस्पेक्टेड सर। एक पैकर का इस्तिआरे तक, एक पैकर का इस्तिआरे तक, सांप का सा सफर पिटारे तक। सांप का सा सफर पिटारे तक। मौत आती है खुद मरीज के पास, मौत आती है खुद मरीज के पास।
वाह, पेड़ जाते नहीं है आरे तक, क्या बात है, फिर पढ़िए सर। अरे वाह वाह। मौत आती है खुद मरीज के पास, पेड़ जाते नहीं आरे तक। क्या बात है। अब एक गजल के 2-3 अशार आपकी नजर कर रहा हूँ। ये का मौका मिलता है। गजल का लघवी मानी है औरत से बात करना, औरतों से, एक से औरतों से। तो इस नुक्ते से फायदा उठाकर मैंने एक गजल का मतलब कहा है, सुनिए, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। गजल में बात कभी की नहीं है औरत से, गजल में बात कभी की नहीं है औरत से, ये इन्हिराफ जरा सा किया है, ये इन्हिराफ जरा सा किया रिवायत से। अरे वाह 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 वाह। गजल में बात कभी की नहीं मर्दों से ही की। औरत से। ये सच भी है, मेरी गजल में औरत से बातें नहीं है, मैं आसमान से बातें करता हूँ। ये इतनी गहरी खामोशी हुई है तारीख क्यों, ये इतनी गहरी खामोशी हुई है तारीख क्यों, हुई सदा की मुलाकात क्या समात से, वाह वाह वाह। हुई सदा की मुलाकात क्या समात से, हवा उलट नहीं सकती फकीर का ये तख्त, वाह। हवा उलट नहीं सकती फकीर का ये तख्त, हूँ तख्ते खाक पे अफलाक की हिमायत से। वाह 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 वाह। और अब एक और पढ़िए। आता नहीं समझ में कि हैं क्या भला ये लोग, आता नहीं समझ में कि हैं क्या भला ये लोग, जिंदा हैं और खुश भी हैं तेरे बिना ये लोग। वाह वाह वाह। आता नहीं समझ में कि हैं क्या भला ये लोग, जिंदा हैं और खुश भी है तेरे बिना ये लोग। वाह। ओ शब जिंदादार करते नहीं गुल चरागे चश्म, शब जिंदादार उसको कहते हैं जो शब को बेदार रहने वाले खुदा की इबादत में। शब जिंदादार करते नहीं गुल, गुल यानी बुझाना, शब जिंदादार करते नहीं गुल चरागे चश्म, रखते हैं अपना हुजरा फरोजा सदा ए लोग। अरे वाह वाह वाह। सूफियाना रखते हैं अपना हुजरा फरोजा सदा ए लोग, और खुलता नहीं है इन पे समात का दर कोई, खुलता नहीं है इन पे समात का दर कोई, दश्ते जहां में फिरते हैं मिसले सदा ये लोग। वाह 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 वाह। और ये शेर खास तवज्जो चाहता है आपकी। पूछा गया जमीन से तेरी ग़िज़ा है क्या, पूछा गया जमीन से तेरी ग़िज़ा है क्या, फौरन जवाब उसकी तरफ से मिला ये लोग। पूछा गया जमीन से तेरी ग़िज़ा है क्या, फौरन जवाब उसकी तरफ से मिला ये लोग। तुम पर पहाड़ से भी ज्यादा है कोई बोझ, तुम पर पहाड़ से भी ज्यादा कोई है बोझ, पूछा जमीन से हमने तो उसने कहा ये लोग। पूछा जमीन से हमने तो उसने कहा ये लोग। और आखिरी शेर सुनाता हूँ।
जिस आसमां को सर पे उठाते हैं आए रोज, वाह वाह वाह, जिस आसमां को सर पे उठाते हैं आए रोज, रखते नहीं है उससे मगर राबता ये लोग, वाह 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 वाह, बहुत रखते नहीं है उससे मगर राबता ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने सब्र तहम्मुल के साथ, मैं आलमी उर्दू मजलिस दिल्ली का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मैं ख़ुद को इस लायक नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई की और मेरा दिल खुश हो गया। और मैं तमाम सामीन हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शुरू से आखिर तक सब्र तहम्मुल के साथ इस कार्रवाई को देखा, सबों की तकरीरें सुनी और मेरे ये अशार भी सुने। शुक्रिया। आप खूब फोटो लो ना, यूँ खड़े हो गए, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, हद हो गई। आप लोग वाकई आपने बड़े सब्र तहम्मुल का नजराना हमें पेश किया है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सब में हनीफ तरीन के दोस्त हो। हनीफ तरीन का तन मन धन उन लोगों के लिए हर वक्त हाजिर है जो सच्चे हैं और सच्ची दोस्तियां करते हैं। जैसे डॉक्टर नज़ीर साहब बैठे हैं, कुछ गड़बड़े हो गई वरना उनको स्टेज पे बैठना था। सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि हमारी बज़्म के वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट हनीफ तरीन के ओनली साथी इस पूरे फंक्शन को अरेंज करने में, उनसे शुरुआत करानी थी, यानी बशीर चिराग साहब से। कुरैशी साहब डॉक्टर ये गर थोमुत एम बटला हाउसस मज अख वाहिद फ्लैट सिर्फ इल्म अदब खतर, बे मे पाई कशर जबान अदब के हवाले क्या यीज दिलचस्पी। पत मैं सनान सनान गोस अमिस नजदीक वातान वातान गोस अम सिंदिस अयालस नजदीक, इत तोग मे बोजुन अमिस हुंद खानदर। ओतान ओतान बह इंतजार करान प्रोग्राम दिल मज चिराग फाउंडेशन के जरिए गालिब एकेडमी मज, यह चीफ गेस्ट आनान। पत यम सात यह फारे गसित और आव यम करान वो प्रैक्टिस रपी ज़ाना, सह क्या गो रपस 10,000 दोस डॉक्टरस कनस दिल्ली मज। ये सोन मामूली डॉक्टर निवान यह सा कुन कंपाउंडर वानस पे मेडिसिन वानस पे सह कम अज कम 10,000 10,000 निवान। डॉक्टर नज़ीर सबस कुन मैं इशारे करान, यह मुफ्त इलाज करान। बहरहाल अल्लाह ताला सज इनायत यह, अल्लाह ताला सज इनायत कि आज उस तकरीबन 6 जायन 6 जगह आज अदबी निशस्त का एहतमाम किया गया था। उसके बावजूद हमारी फंक्शन में, हालांकि हमने कोई चिट्ठी वगैरह इनविटेशन कार्ड जिस तरीके से करते हैं वो तरीका हमने नहीं अपनाया। डॉक्टर हनीफ तरीन साहब ने कहा मुझे बहुत भरोसा है आपके कश्मीरी भाइयों के ऊपर, ये अल्लाह की कसम सही बात है। बोला पिछले साल भी हमने कोई इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, जिनको फोन पे बुलाया हमने वो आ गए। एक मुकामी होटल में, हमारे यहाँ कश्मीर के मुकामी होटल में, बड़े होटल में, और वही सूरत हाल इस वक्त इस प्रोग्राम की है। अगर जाहिर होगा किसी को हमने इनविटेशन, वो रिटन इनविटेशन दिया है तो हम फिर जुर्मवार हैं। ज़बानी एतबार से कहा वतन वुचान और शुक्र परवरदिगारस कुन तुम रूदू इन वतन शेर लागान, और नतीज द्राव यह कि अल्लाह ताला तुहद इनायत तुहद एतबार सुरुख रो। नत हालात तिम कि हुत गस प्रोग्राम गसन सही, ये गस गसन खराब। बे तिम यमो बेकार तो नाबकार अतो कदर अफजाई तिमन कर, तिमे गई वनस ना फिक्र तरह बशीर चराग पकान कुछ तरह डॉक्टर हनीफ तरीन पकान बाना अपर किन ये ना कहें, ये ना कहीं के करान। सब करते हैं, जैसे मैं इंटरव्यू में कहता हूँ सब करते हैं, मगर आप करने का तरीका है। डॉक्टर हनीफ तरीन साहब
इसको आपका हौसला चाहे, इसको आप की मोहब्बत की जरूरत है। और मैं यकीन से कहता हूं कि ये उर्दू अदब के साथ साथ हमारी मादरी जबान कश्मीरी जबान अदब जो है, इस आलमी उर्दू मजलिस के वसातत से और आप लोगों की दुआओं से, हिम्मत से और हमदर्दी से इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा हम आगे बढ़ेंगे। अभी और एक प्रोग्राम हमारा हो रहा है, उसमें भी हमारी सिलेक्शन है। आज की सिलेक्शन जिस तरीके से, अगर आपको लगेगा इसमें जरा भर किसी किस्म का कोई वैसा मामला रहा है तो हम जुर्मदार हैं, हम कसूरवार हैं। यही सिलेक्शन जो होगी इंशाल्लाह इसी तरीके से और अपने अपने टाइम पे इंशाल्लाह। और इसमें ये राय नहीं होगी कि ये भी छोटा शायर है और ये राज साहब बड़ा शायर है, नहीं, शायरी के एतबार से, शायरी तफक्कुर के इजहार के एतबार से शायर तो शायर है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको जो रुतबा दिया है तखय्युल के एतबार से, शऊर के एतबार से, वो अपना अपना है। गालिब के शऊर के लिए कितने शायरों ने सर फोड़ा लेकिन वो गालिब नहीं बने। हमारे किबला हकीम मंजूर साहब, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, हमारे ज्ञान पेट अवार्ड जनाब प्रोफेसर रहमान राइस साहब, अमीन कामिल साहब, प्रोफेसर फराग साहब, गुलाम नबी ख्याल साहब और भी बहुत सारे जो है इनके साथ जुड़े। इसका बुनियादी मकसद क्या था सर? आलमी मजलिस उर्दू दिल्ली जो है, ये उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए और इसकी तरवीज के लिए दिल्ली में भी काम करती है। और आज का जो प्रोग्राम यहाँ उन्होंने किया है उसका मकसद भी यही है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसकी सरकारी ज़बान उर्दू है, यानी उसका मतलब है कि उर्दू में तमाम ऑफिस में काम होना चाहिए। जो ज़बान किसी रियासत की सरकारी ज़बान होती है उसी ज़बान में काम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में काम होता है, दफ्तरों में भी। बहरहाल कोई बात नहीं, फिर भी सरकार को इस ज़बान को तरक्की देने के लिए कुछ काम करने होंगे, उस पर जोर देने के लिए भी ये प्रोग्राम था। और एक मुशायरा भी हुआ था, लोगों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी हुई, जो लोग उर्दू में लिखते हैं उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी हुई। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि उर्दू ज़बान को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये तंजीम उर्दू ज़बान को आगे ले जाने के लिए ये काम कर रही है, क्योंकि पूरे मुल्क में उर्दू की हालत जो है वो नागुफ्तबे है, यानी तशवीशनाक हद तक ख़राब हालत है इस ज़बान की। अगर इस ज़बान की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, ये ज़बान सूख सूख कर पेड़ की तरह मर जाएगी। तो ऐसी तंजीमें अगर इसी तरह काम करते रहेंगी और लोगों को जमा करते रहेंगी तो लोगों में भी उर्दू ज़बान के लिए एक जज्बा, एक जोश, एक वलवला पैदा हो जाएगा। वैसे भी उर्दू मीठी और शीरीन ज़बान है, इसको सुनना सब लोग पसंद करते हैं। इसकी गज़ल जो है वो लोग भी सुनते हैं और सुनना पसंद करते हैं जो उर्दू न लिखना जानते न पढ़ना जानते हैं, लेकिन समझते हैं। उर्दू फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके लिए जो काम करना चाहिए, जिन इदारों को काम करना चाहिए, वो इदारे वो काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत में उर्दू अकादमी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये सरकारी ज़बान होने के बावजूद अभी तक उर्दू अकादमी का वजूद ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर के साथ बात करने का बेहद शुक्रिया सर। शुक्रिया। क्या उर्दू क्वेश्चन क्या कौन सा ये है? उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर अदब की एक ही चैनल है यहाँ पर, बस हिंदुस्तान में हमारे। अच्छा
रेडी? आपको इनवाइट किया था इससे पहले हमें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम इस तरह की महफिलों का इनकाद करने का बुनियादी मकसद क्या है? उर्दू का फ़रोग़ ही है मकसद, और अगर ज़ाती तौर पर यानी तंजीमों की तरफ से, NGOs की तरफ से हो रहा है, बड़ी बात है। अगर सरकारी इदारे करें तो कोई अहम बात नहीं है। अहम यह है कि अपने तौर पर अपनी यानी अपने ख़र्चे पे जब इस तरह की तक़रीबात होती हैं, जज्बे के तहत होती हैं, तो उसी सिलसिले में एक आज का ये भी था फंक्शन जो हुआ। अच्छा मैम, हमारे नाजरीन किराम को ये बताइए कि अंग्रेज़ी ज़बान जो उर्दू पे गालिब आ चुकी है रियासत जम्मू कश्मीर में, तो आप क्या समझती है ऐसे महफिल का इनेकाद करने से क्या उर्दू का फ़रोग़ और उर्दू गालिब आ सकती है उस ज़बान पे? नहीं, अंग्रेज़ी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब उर्दू भी इंटरनेशनल सतह पर आ रही है। कई ममालिक में उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे अदबी सतह पर हो चाहे गैर अदबी सतह पे, लेकिन अंग्रेज़ी तो पहले ही से पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उर्दू का अंग्रेज़ी से कोई मुकाबला ही नहीं है। वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह, उसकी यूटिलिटी अलग है, इसकी यूटिलिटी अलग है। ये यानी बरसग़ीर की ज़बान है, बरसग़ीर हिंद पाक की ज़बान है, और आसपास जो कंट्रीज़ हैं जो उर्दू बोलने वाली, तो उर्दू का अंग्रेज़ी से मुकाबला नहीं है। अंग्रेज़ी का पहले ही छाया हुआ है पूरी दुनिया में, ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अंग्रेज़ी ज़बान पे। क्या वजह हो सकती है कि उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम जो हमारे हैं, जिनको उर्दू लग्जरी लाइफ फराहम करता है, उनके बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और साइंस पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी ये है वायबिलिटी, यानी अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ के वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, जबकि उर्दू के लिए मखसूस एरिया है। तो उस वजह से लोग ज़ाहिर है देखते हैं, जब कोई चीज़ यानी करियर जहन में है तो फिर अंग्रेज़ी की तरफ ही भागेंगे। लेकिन कश्मीरी के मुकाबले में अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू का वसी मैदान है। यानी अगर कोई उर्दू बोलने वाला उसमें फ़्लो हो बोलने में, उस पर होल्ड हो ज़बान पे, तो खाली कश्मीरी जिसके पास है उससे तो बेहतर उसको मौक़े मिलेंगे। हर ज़बान का अपना एक दायरा अमल होता है, दायरा ये इख्तियार होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उर्दू भी अपना असर रसूख रखती है, उर्दू ज़बान भी रखती है, लेकिन सरकारी सतह पर इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ये अफसोस की बात है। ये यहाँ की सरकारी ज़बान तो है, लेकिन सिर्फ कागज़ों में है। अमली तौर पर इसके फलाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे उर्दू एकेडमी के इनेकाद का, उसके कमीशन का ये हुआ था कि अब ये होगा, अमल में आएगा उर्दू एकेडमी, अभी तक तो ऐसा कुछ अमली तौर पर नहीं हुआ है। मैम, इससे पहले कोई ऑफिसर अनाउंसमेंट ये करे कि आज से सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी है, उर्दू वालों को क्या करना चाहिए? अंग्रेज़ी ज़बान यहाँ राब्ते की ज़बान है, ये हमारे स्टेट के लिए, यानी लद्दाखी जो कश्मीरी नहीं समझता कम से कम उर्दू तो समझता है। ऐसे ही कश्मीरी लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जो फोक है यहाँ का, तो वो सिर्फ कश्मीरी ही जानते हैं, लेकिन उर्दू भी साथ साथ जानते ही हैं, उर्दू बोल सकते हैं, उसमें है उनको ये। इसी तरह से जम्मू वाला अगर डोगरा कोई बोलता है डोगरी में, वो डोगरा आदमी जो उर्दू नहीं जानता है, और जो वो कश्मीरी जो उर्दू नहीं जानता है, ये एक दूसरे के लिए गूंगे और बहरे हैं। इनको जोड़ने के लिए लद्दाखी जम्मू वाले को और कश्मीरी को जोड़ने के लिए कोई ज़बान अगर चाहिए तो वो उर्दू है। अंग्रेज़ी तो ठीक है, वो हायर लेवल पे होगी, लेकिन आम जो लोग हैं उनके लिए उर्दू एक राब्ते की ज़बान है, इसलिए ये यहाँ से ख़त्म नहीं होगी। अगर सरकार चाहती है कि तीनों में इत्तेहाद हो, तीनों खित्तों में, तो इस ज़बान को ज़िंदा रखना पड़ेगा। आखिर में हमारे नाजरीन को कोई मैसेज ये है कि पहले मादरी ज़बान है जिसकी जो है, चाहे गोजरी है, चाहे डोगरी है, चाहे लद्दाखी है,
पहले वो ज़बान घर में बोलें और फिर दूसरी सतह पर हमारी राब्ते की ज़बान और सरकारी ज़बान जो है उर्दू, उसको ये बढ़ावा दें, लेकिन अंग्रेज़ी से महरूम ना रखें बच्चों को। उसकी भी ज़रूरत है अगर इंटरनेशनल लेवल पर आना है। उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर के साथ बात करने का बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर हनीफ तरीन साहब, हमें आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय दीजिए कि किस वजह से आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और क्या पैगाम रहेगा आपका उर्दू वालों के लिए? देखिए, उर्दू ज़बान 1888 में गुलाब सिंह के ज़माने में यहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में राइज हुई, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की ज़बान के तौर पर इसे लाया गया ताकि लद्दाख और जो दूसरे इलाके हैं जहाँ कश्मीरी नहीं समझी जाती, वहाँ के लोगों को एक ज़बान के अंदर बांधा जाए। 1888 में हिंदुस्तान की हर तरह की ज़बान, सरकारी ज़बान, आम ज़बान, सबके लिए ये ज़बान थी। तो ये कश्मीर जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन पिछले 70 साल में से आहिस्ता आहिस्ता इतने नीचे ले जाया गया, अंग्रेज़ों को इतना उठाया गया। समझे साहब के यहाँ की लोकल ज़बान जो मादरी ज़बान थी कश्मीरियों की, वो भी दब के रह गई, और दूसरी चीज़ जो थी वो उर्दू का तो फिर नामो निशान नहीं रहा। फिर ये हुआ, उर्दू के जो लिखने वाले हैं, ख़ासतौर से नौजवान नस्ल, उनको इनकरेजमेंट का सामान नहीं मिला। इनकरेजमेंट का सामान होता है यहाँ का दिल्ली दूरदर्शन, यहाँ के वो इदारे जो गवर्नमेंट चलाती है, वो तो अब खुदा का शुक्र हुआ कि ये मीडिया आप जैसे लोग आ गए, जिसकी वजह से आज खबरें तमाम दुनिया में पहुंच जाती हैं, वरना तो जनाब बड़ा बुरा हाल था। तो उर्दू ज़बान की तरवीज व तरक्की के लिए मैं कश्मीर, पिछले साल से मैंने ये इनामात का सिलसिला शुरू किया है। अगले साल हम कश्मीर में एक कश्मीरी के अदीब को देंगे, एक कश्मीरी शायर को देंगे, और थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे। मीडिया को जैसे हमने शुरुआत की, टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरुआत की है, और इससे दूसरे अखबारों को भी लाएंगे, तो हमारा दायरा और फैलेगा। आज 6-7 फंक्शन थे सिटी के अंदर, ख़ासतौर से 2 फंक्शन तो वहाँ थे, किताब का जो मेला चल रहा है। फिर भी हमारा 63-64 लोग 65 लोग आए, ये बड़ी बात है। और जहाँ जितने भी लोग आए थे वो सब उर्दू से बहुत ज़्यादा वाबस्ता लोग थे। जैसे मैंने 2-3 शायरों को मना कर दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें वक्त भी देखना पड़ता है। मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी से करता हूँ, रबाब से। रबाब, यहाँ तशरीफ़ ले आइए आप ज़रा। डॉक्टर शमीम इधर आइए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपसे कि उर्दू ज़बान जो है वो हमारे लिए जीने और मरने का मकसद है। इसीलिए हमने ये सऊदी अरेबिया की नेशनलिटी छोड़ी, 15 लाख रुपए महीना मिलते, और हम यहाँ आ गए। और आजकल डॉक्टरी भी छोड़ी हुई है, बहुत बड़े इदारे में काम करते हैं, हॉस्पिटल में, और सिर्फ अदब ओढ़ना बिछोना खाना पीना अदब हो गया है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी माशाल्लाह आपकी शायरी रेख्ता पर भी हर दिल अजीज़ है। आपकी शायरी सोशल मीडिया पे भी आपकी शायरी बहुत लोग देखते हैं। आपको शायरी का शौक़ कब से हुआ और किस तरह से हुआ? मैं कश्मीर में जब MBBS करने आया गवर्नमेंट कॉलेज श्रीनगर में, तो यहाँ चीफ मिनिस्टर की लड़की पढ़ती थी, मेरी क्लास फेलो शमा कासिम। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर की लड़की पढ़ती थी शमा गोनी, वो हेल्थ मिनिस्टर थे। 70 की बात कर रहा हूँ। दूसरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े घरानों के लड़के पढ़ते थे, चीफ मिनिस्टर के, फलाने दिमाग के, सारे नॉमिनेशन वाले ताकतवर लोग यहीं MBBS करने आ जाते थे। तो मैं ये सोचता था, ये देखता था कि यार हमें कोई पूछता नहीं इतना। तो जनाब एक कॉलेज फंक्शन हुआ, वहाँ हमने एक नज़्म पढ़ी, डॉक्टर बेचारा, वो सुपर हिट हो गई, बड़ी तालियां मिली। फिर फंक्शन दूसरा आया, उसमें फिर हमने और नज़्म पढ़ी। इस तरीके से पढ़ते पढ़ते जनाब हम यूवानी पहुंच गए। बशीर शाह साहब, उस वक्त दूर शाह साहब के बड़े छोटे भाई, वो देखते थे यूवानी, उन्होंने हमें प्रोग्राम दिया। कमाल अहमद सिद्दीकी साहब थे चीफ प्रोड्यूसर, उन्होंने प्रोग्राम दिए। फिर हम TV पे पहुंच गए। गोस्वामी साहब थे यहाँ पर एक, उन्होंने 3.5 घंटे का ड्रामा बनाया था, पहला ड्रामा हिंदुस्तान का, जिसमें तारिक शाह यहाँ
एक लड़का है, जानते होंगे आप, तारिक शाह, वो हीरो थे और मैं उनके विलन था। मैंने डॉक्टर का रोल किया था वहाँ पे। उसके बाद जफ़र अहमद साहब थे। जफ़र अहमद साहब जो थे, उन्होंने मुझे बहुत अपनी शायरी में बुलाया, उन्होंने ये दी। इतना नुकसान हो गया मेरा शायरी में कि मेरा फाइनल का इम्तहान आ रहा था, तो मुझे एक दिन शमीम अहमद शमीम, मरहूम शमीम अहमद शमीम साहब, ये BA खान साहब जो चीफ जस्टिस हैं, इनके बहन हुई, हवा के भाई, उन्होंने मुझे और कमाल अहमद सिद्दीकी ने डांटा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम एक इंटेलिजेंट आदमी हो, क्या शायरी और टेलीविजन पकड़ लिया है, सिर्फ प्रोग्राम करते रहते हो, तुम्हारी डॉक्टरी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछता शायरों वायरों को, एक्टरों को, दो टके हुए बिकते रहते हैं। डॉक्टरी करो, तुम बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, मशहूर डॉक्टर हो गए तो पैसा भी होगा और फिर हर आदमी तुम्हारी शायरी सुनना पसंद करेगा। तो हुजूर वाला अपने आप को मैंने कांजी हौद भेजा, यानी कांजी हौद उसे कहते हैं जो जानवर इधर उधर फिर रहे होते हैं, उन्हें एक ख़ास जेल होती है, उसे कहते हैं कांजी हौद। ख़ुद को कांजी हौद करके सऊदी अरेबिया चला गया मैं और वहाँ रहा, मगर तेज़ था इसलिए वहाँ अमीरों के पास पहुँच गया। तो दिन भर तो मैं ये करता था, शाम को बड़ा बोर होता था तो मैंने शायरी शुरू कर दी वहाँ, और करते करते आज ये हाल है। 24 किताबें आ गई हैं मेरी। 2018 में 2 किताबें और 2019 में एक किताब आई है, दलित कविता जाग उठी है, जो इशारिया है दलित और मुस्लिम इत्तेहाद का। मेरा मानना ये है कि अगर दलित मुस्लिम इत्तेहाद हो जाए तो 42% वोट इन दोनों के इकट्ठे हो जाएंगे और हिंदुस्तान में जो एक मोनोपोली चल रही है बड़ी कौमों की, बड़े आदमियों की, बड़े लोगों की, ताकतवर लोगों की, वो ख़त्म होगी और आम लोगों को मौका मिलेगा। दूसरी मेरी किताब आई है द ट्रूथ ऑफ टेररिज्म, अंग्रेजी में है। उसमें मैंने लिखा कि आतंकवाद की हकीकत है क्या, कहाँ से शुरू हुआ। 1990 के बाद 2001 से आतंकवाद टेररिज्म मुल्कों पे हमले किए गए, कभी किसी के नाम से, कभी किसी जगह कहा गया कि यहाँ ऐसा हथियार है जो तमाम दुनिया को तबाह कर देगा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इराक तबाह कर दिया गया और तबाही इस तरीके से फैलती चली गई दुनिया में। तो हम अमन का पैगाम निकले हैं उस ज़बान के साथ जो अमन की दाई है, जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपना हक अदा किया है, जो कश्मीर में 1888 से जारी है। हम चाहते हैं उसकी कुछ तरवीज व तरक्की हो और यहाँ उठान हो, और हमारे जो नौजवान टैलेंट है, जैसे आज हमारे यहाँ एक कन्वीनर था जिसने इस प्रोग्राम को पूरे कन्वीन किया, जानते हैं आप कुरैशी साहब को। कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से प्रोग्राम को किया और हमने चुनिंदा लोग बुलाए थे, चुनिंदा शायर थे, चुनिंदा लोग हमारे यहाँ 6 फंक्शन और थे, वहाँ नहीं गए। हमें बड़ा दुख होता है जब हम अपने अजीज़ दोस्त वशी सईद साहब को बुलाएं एज ए मेहमान खुसूसी और वो बेचारे बीमार हो जाएं या किसी और वजह से ना आ सकें। और दुख इस बात का सबसे ज़्यादा हुआ कि यहाँ बड़ा गठबंधन है, यहाँ इतने ग्रुप्स हैं, उन लोगों में जो सबसे विजनरी लोग हैं, सबसे लिटरेरी लोग हैं, उनके इतने ग्रुप बने हुए हैं कि एक ग्रुप वाला जहाँ जाता है दूसरा ग्रुप वाला जाता है। बड़ी शर्म आती है जब ये ग्रुप इनमें है तो कितने मुल्लाओं में होंगे। तो अगर आप ग्रुपों में बैठे हुए हो तो मेरा शेर है कि हुक्मरानी क्या करेगी कौम वो जग में हनीफ, काकुले पेचा की जिसके पैर में जंजीर है। बहुत खूब। आपका चैनल को मैं सलाम करता हूँ। आप बहादुर लोग हो जो एक ऐसे इलाके के अंदर ये काम कर रहे हो जहाँ बहुत ख़तरा है, जहाँ राइट भी ख़तरा है, लेफ्ट भी ख़तरा है, ऊपर भी ख़तरा है, नीचे भी ख़तरा है। क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए, क्यों बोला जाए, किससे बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आता। कश्मीर पर मैंने बहुत लिखा है। कश्मीर की एक बड़ी बड़ी मशहूर नज़्म है, उसका आखिरी हिस्सा पेश करता हूँ और आपके नाज़रीन को बहुत पसंद आएगा। एक अमन की लहर थी कल दूध से दरियाओं में, अमन की लहर थी कल दूध से दरियाओं में,
थी मकी आशिती, आशिती कहते हैं हमको, थी मकी आशिती हर शहर में हर गांव में, क्या हुआ क्यों यहाँ बारूद की बदबू फैली, शोले क्यों भड़के चुनारों की घनी छाँव में, लग गई किसकी नजर इश्क की आबादी को, किसने रंजूर किया कश्मीर की शहजादी को, किसने गमगी किया कश्मीर की शहजादी को, किसने अगवा किया कश्मीर की शहजादी को। आई लव कश्मीर, आई लव कश्मीरी पीपल। कश्मीर हमारा बदन का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। आपको बहुत सलाम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भेजा। हमारा हम शायर हैं, हमारे लिए कौमें, रंग, नस्लें, मज़हब सब बराबर हैं, और हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसका पहला और आखिरी एहकाम है हुकूकुल इबाद, क्योंकि अल्लाह ताला हमने गुनाह किए हैं वो माफ़ कर सकता है, और उसने कहा भी है कि अपनी इबादतों के बदौलत ये मत समझो कि तुम बख्श दिए जाओगे जब तक हम ना चाहें। तो फिर क्या रह गया? 75% हुकूकुल इबाद है। आज मुसलमान हुकूकुल इबाद से टोटल हट चुके हैं। अगर कोई बदअखलाक कौम इस वक्त, मुझे कहना नहीं चाहिए, है तो हनीफ तरीन है, हनीफ तरीन की कौम है। अखलाक सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब होता है, जिसकी तरवीज तालीम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली दी है। जी बिल्कुल। यकूल, वो कहते हैं यकूल मैंने आप कहते थे हो करते नहीं, हमारे रसूल ने हर चीज़ करके बताई है। तभी इस्लाम उस जगह पर जो बदतरीन जगह दुनिया की मानी जाती थी, वहाँ इस्लाम के नूर को 23 सालों में रोशन कर दिया। अकेली ज़ात उठी थी। अल्लाह हमें उनकी रहमत से, उनकी शफाअत से बख्शवाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर साहब, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। उर्दू वर्ल्ड से मेरा वास्ता बन गया है। दिल्ली आइए, हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, मेरे घर ठहरिए, मैं आपको लोगों से इंटरव्यू करा के, ऐसे लोगों का इंटरव्यू करा के आपको दूंगा कि जब वो आप टेलीकास्ट करेंगे तो आपकी जगह पूरे हिंदुस्तान में नहीं आलम में मशहूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। के हवाले से अपनी राय का इजहार कीजिए, हमारे नाज़रीन को बोले कि आज का जो प्रोग्राम था, और इसके साथ साथ आप ये भी बोले कि आपकी जो अंजुमन है इसका नस्बुल ऐन क्या है। हाँ, जो आलमी उर्दू मजलिस नई दिल्ली एक इल्मी इदारा है, इसका जो मरकज़ है वो नई दिल्ली में है, और इसके रोह रवां सदर जो है वो डॉक्टर हनीफ तरीन साहब है। उसके हवाले उसके बारे में मैं पहले ये कहूँ कि हालांकि वो एक डॉक्टर है, सर्जन है, एक मौलिज है, बड़े मशहूर मौलिज है, और उसके अंदर इल्म अदब का कितना लावा पड़ा है ये शायद आप नहीं जानते हैं। करीब 2.5 दर्जन किताबों के मुसन्निफ है वो। 2 क्लिनिक उनके चलते हैं दिल्ली में, अपोलो हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जितना वो इल्म अदब के इस मैदान से चल रहे हैं, उनका अपना जो ज़ाती प्रोफेशन है वो भूल जाते हैं, और इल्म उर्दू ज़बान अदब और बाकी कश्मीरी ज़बान अदब के लिए भी उनकी बहुत कोशिशें हैं कि ये भी इसी ज़बान के साथ आगे चले। और मुदा मकसद जो है वो यही है कि हम पिछले साल से, जैसे पिछले साल भी हमने एक मकामी होटल में यहाँ 2 प्रोग्राम किए, और आज भी हम करने जा रहे हैं। इसमें अवार्ड भी है, और अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनकी कारकर्दगी समाज में, चाहे वो जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हों, जो हेल्थ शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हों, वो लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हों, और खदमत खल्क़ का जज्बा उनमें है, उनको हम उनकी सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन से हम उनको उनकी कदर अफजाई करते हैं,
اور ان کو ایوارڈ سے ہم نوازتے ہیں. یہ وہی کڑی آج کے پروگرام کی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور اگر خدا نے چاہا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے آگے بھی چلتا رہے گا, اور باضابطہ طور سے عالمی اردو مجلس کا جو جموں کشمیر کا یونٹ ہے وہ اس کا باضابطہ طور سے آج ہم نے افتتاح کیا ہے. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اس یونٹ کا نائب صدر میں منتخب ہوا ہوں. یہ صرف آپ دوستوں رفیقوں کے دعاؤں کے کفیل ہو رہا ہے. چراغ صاحب, جو نئے نئے شعراء ابھر رہے ہیں, جو ابھی نو مشق ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ ہاں, ان کے لیے میری میسیج یہ ہے, جیسے میں ہر ایک انٹرویو میں چاہے ریڈیو سے ہوں یا کسی اور نجی اعتبار سے ہوں, میری میسیج یہ ہے کہ ان کے اندر اگر کسی چیز کا لاوا ہے, ان کے اندر اگر کوئی اضافہ, کوئی تصور ہے, کوئی تخیل ہے, اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ ان پروگراموں میں آ کے شمولیت کریں. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ پرانے اپنے بزرگ استاد شعراء جو ہے ان کی کتابیں بازار سے لائیں, منگا کے لائیں. یہاں ہماری جموں کشمیر کلچر اکیڈمی اتنا بڑا ادارہ ہے علم و ادب کے حوالے سے, تہذیب کے لیے, تمدن کے لیے, ثقافت کے لیے, زبان ادب کے لیے ہے. وہاں جائے, مفت کتابیں لے آئے, وہ پڑھیں, دیکھیں, اور جو اپنے اندر جو تہذیبی, تمدنی اور تفکری لاوا جو ہے وہ اس ذریعے سے وہ لوگوں کے سامنے لے آئے. اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ اگر وہ اس چیز کے اوپر اس بات پر وہ عمل کریں گے, اور اس چیز کے لیے, اس عمل آوری کے لیے جو کچھ ہمارے سے ممکن ہو سکے گا وہ ہم پیش رکھیں گے. چراغ صاحب, اردو ورلڈ سری نگر کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جو میں پچھلے سال سے 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک جگہ, اور ان کی تفصیل جو ہے بات کرنے کا, ان کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے, اور لوگ اسے بہت, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کا اپنا یہ بڑے اچھے انعماق انداز سے وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. میں خاص طور سے عرفان سید صاحب کا اور سید ناربلی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں یاد کرتے ہیں اور اس قابل سمجھتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.